almost in every meeting of the Judicial Commission, Chief Justice and the senior judges, including me, हमने ये मुतालबा किया कि तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होना चाहिए। सपोज अगर आज ये बात मान लीजिए कि तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिए जाते हैं, मैंने कल भी सवाल किया, फिर आप मुतमईन होंगे? मैंने तो आपसे कहा, टू मी इट मेक्स नो डिफरेंस you wear the hat of a constitutional bench or a regular bench, because I believe that there is inherent judicial power under the constitution to examine the constitution. तो आप ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें आपका मसला हल हो जाए कि तमाम जजेस बैठ जाए, हमें वो रास्ता दिखाएं। बस बड़ी सी बात है, हम ये नहीं करेंगे किसकी जुरिसडिक्शन को छोड़ दे इस बात को। I would suggest should your lordship should hear all the counsels who will be appearing, and perhaps they are more persuasive than I am, तो ये नौबत नहीं आएगी। अगर हम भी आपस में बात करेंगे, we will also think about it, but for the time being this should await the submissions of the rest of the learned council. Now, my lord, this brings me the question that was posed by Justice Naeem Akhtar. Justice Naeem Akhtar, I was hearing the case on video link. Who should the direction be to constitute the full court? My submission is that if applying your judicial mind, your lordship comes to the conclusion that this is a matter in which there should be a full court, then the direction need not be directed to anyone. All that your lordship has to say is, let the full court be formed. And there are cases in which this has been done. These are the cases of IG Police versus Ghulam, PLD 1974, Supreme Court 76, at page 77. Abdul Rashid or Rashid versus State, PLD 1972, Supreme Court 295. इसमें आपके जुडिशियल ऑर्डर से उन्होंने फुल कोर्ट कहा है बनाने के लिए, किसी को डायरेक्शन नहीं दिया। हाँ जी, किसी को डायरेक्शन नहीं दिया को या दी, मगर इन पास्ट व्हेन देयर वाज नो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, यू रिमेंबर दैट मैटर इज रेफर्ड टू द चीफ जस्टिस and subject to his approval the larger bench or the full court is constituted. आपका फैसला तो सब पे बाइंडिंग है ना? No, but I am asking this question to you कि आप जो बात करेंगे किसी जजमेंट में ये आया है कि कोर्ट ने खुद फुल कोर्ट बना दिया है? I don't think so. Always the matter is referred to the chief justice when he was the master of process. That is an administrative act, sir. The litigant is not to be burdened with the administrative act. वो तो आपका है कि आप कैसे करते हैं। तो दिखा दे, मैं भी रजिस्ट्रार करता हूँ। Is there any judgment of this court directly asking for the full court without the approval of the chief justice? वही तो मैं साइट कर रहा हूँ। दिखाइए जरा, कौन सा वाले में देखें? PLD 74, सुप्रीम कोर्ट 76। जी, PLD नहीं 74, ये एक आपने 95 कौन सा बोला है? देना जरा भाई। पहला है PLD 1974, सुप्रीम कोर्ट 76, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। अभी नहीं है ये साइट में, यही है साइट की है। 1974 सुप्रीम कोर्ट 76, इसका पेज 77, लास्ट लाइन। ओके, last line. Let this matter be placed for consideration before the full court. Full stop. For consideration. PLD 1972, Supreme Court 295. ये इसमें लिखा है ना, full court meeting है ये, full court not in the constitutional bench or the before the court. ये तो फुल कोर्ट मीटिंग में कंसीडर करने के लिए कहा। सवाल ये था कि डायरेक्शन किसको दें अगर आप फैसला करते हैं। डायरेक्शन नहीं है, देखिए अब ये देखें PLD। मुनीर सर इसमें देख लें, लास्ट लाइन आप पढ़ लें।
let this matter be placed before for consideration. The matter be placed for consideration before the full court. Not in the court. Who will before the consider? full court meeting. ये मीटिंग हाँ है सर, इसमें तो फुल कोर्ट मीटिंग कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूट किया है यहाँ कहीं पे? नहीं सर, इसमें कॉन्स्टिट्यूट किया है। Let the नहीं, matter- आप बात सही कह रही है, वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं है, बट फुल कोर्ट के लिए वो कहते हैं, मगर इन्होंने फिक्स नहीं किया है ये इस केस को फुल कोर्ट में। ये देख ले सर, दूसरा केस PLD 72 फिक्स नहीं किया है, ये कहते हैं कि ठीक है, अगर सिंध गवर्नमेंट ये उसको कोई इतराज है तो लेट इट बी प्लेस बिफोर द फुल कोर्ट। PLD फुल 19 कोर्ट इटसेल्फ हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। PLD 1972 Supreme Court 295 PLD 1972 Supreme Court 295 at page 301, the last line. The case shall be laid before the full court as soon as possible after long vacation. कहाँ से पढ़ रहे हैं? Last line at page 301. (1970) SCMR 419. 1970 SCMR 419. Last line of the case. It is therefore advisable to adjourn this appeal to be heard with all other cognate matters by the full court at Lahore. On second पहले March- वाले में भी जो आप पढ़ रहे थे ना 1970 SCMR, उसमें 498 के हवाले से बेल बिफोर अरेस्ट के कुछ पॉइंट्स को फ्रेम करके उन्होंने कहा था इसको हम रेफर कर रहे हैं फुल कोर्ट। जी जी इट वाज ओनली ए रेफरेंस। सर उन्होंने तो डेट भी दे दी है हाँ, full court उन्होंने की। कहा कि ईद में छुट्टियों के Second बाद March। लगाए, बट इट वाज ए रेफरेंस फॉर टू द फुल Second कोर्ट। March। जो एडमिनिस्ट्रेटिवली उसमें डील होना था वो हुआ होगा बाद में, पता नहीं कब बनी थी या नहीं बनी। ये 70 में तो चीफ जस्टिस इज आल्सो द मेंबर ऑफ द बेंच। 3-member बेंच। अच्छा, ये आप कौन सा कह रहे हैं? 419 419 420 पे। महमूदुर रहमान साहब जी मेंबर ऑफ द बेंच। तो जमा भी कर ले। No, my lord, why a full court? التلازان بتاعنا لما تكونوا تصويرين. I have no idea what she says. कोर्ट एट लाहौर जस्टिस साहब के वो खुद ही नंबर है उसमें। नंबर क्या है, वो तो हेड कर रहे हैं। भी लोगों से कारण कैसे करेगा? जी, ये 419 के अंदर देखा आपने ये जी 419 महमूदुर रहमान चीफ जस्टिस वाज द सीनियर मेंबर ऑफ द बेंच। उन्होंने कहा इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल टू एडजर्न दिस अपील टू बी हर्ड along with the other cognate matters by the full court at Lahore on 2nd March 1970. He was one of the members of the bench. Yes, he was One of the members of the bench. one of the member, but heading the bench as a Chief Justice Pakistan. Now, why a full court? उससे पहले फुल कोर्ट पे अब बात यहाँ पे सारी हो रही फुल कोर्ट की। फुल कोर्ट मीन ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, नाउ एवरीवन इज जज ऑफ द सुप्रीम पहले मैं आ रहा हूँ why a full court, फिर आ रहा हूँ why only those members who were How can we exclude our learned brother or sister from the definition of judge of the Supreme Court? Let me make a submission. There is no other system. Let me make a submission. हमें और कुछ पता नहीं। Old sister. Lord, Here's a part of the fundamental principle is, sisters को न बिठाने की वो उसमें कोई fundamental principle of jurisprudence is that no one should be a judge in his own cause. Number two, एक मिनट के लिए यहाँ रुक जाए। justice must not only be done, यहाँ it पे रुक must seem to have यहाँ been done. पे यहाँ पे रुक जाए। अब आपको बताना होगा what is our personal cause in this case.
इसका मतलब तो ये हो गया कि ये 8 भी ना बैठे और जो बाद वाले भी ना बैठे, सिर्फ 8 को बिठा देते हैं आपके केस में, पूरा वो सुन लेंगे। नहीं, वो फिर मलिक साहब 8 भी नहीं बैठ सकेंगे वो। उनका भी चीफ cause है। जस्टिस को भी फिर एक्सक्लूड। नहीं, आपने कहा कि जो ये बात 26 अमेंडमेंट के बाद आए हैं, नहीं, ये- इसलिए कह रहा हूँ। ये बात देखिए मलिक साहब खत्म तो करने दें। मलिक साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ, जरा 1 मिनट सुन लीजिए। आपको किसी एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड जुडिशियल कमिशन ने नहीं अपॉइंट किया था। सुनिए बात ना, नहीं कर, हम फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुनिए मलिक साहब सुनिए। उसके बाद 26 अमेंडमेंट के बाद जो है, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2000 मलिक साहब सुनिए, उन अपॉइंटमेंट्स में क्या उन जजेस का कोई भी किरदार है? और दूसरी बात यह कि इफ दे रिफ्यूज, तो वो तो फिर उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। दे वर द चीफ जस्टिस।